جی السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب نواز شریف کے حامی بڑے زور و شور سے کہا کرتے تھے جدوں نواز آئے گا لگ پتا جائے گا، نہیں جدوں میاں آئے گا لگ پتا جائے گا یار، ردم میں کہتے تھے۔ لیکن 21 اکتوبر والا جو جلسہ تھا ان کا بڑا کامیاب جلسہ تھا، سفید کبوتر والا۔ اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے مخالفین کا وہ گھر میں بیٹھ گئے، ڈر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، آپ کو بھی پتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ گھر میں بیٹھے کر رہے تھے جو الیکشن کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ جلسے جلوس کا آغاز کیا مانسہرہ سے، اور پھر ایک بلا ناغہ انہوں نے ڈیلی بڑے بڑے خطابات اور بڑے بڑے جلسے جلوس مسلسل کرنا شروع کر دیے۔ آج بھی جیسا آج تیسرا دن ہے، کیا ہو گیا؟ چلو سر شروع تو ہو گیا نا، لمبی ایک لسٹ ہے جہاں انہوں نے مختلف ایریاز میں جانا ہے۔ اب ان کے بڑے بڑے جلسے اجتماعات اور ان کے خطابات کو دیکھ کے ان کے مخالفین بھی یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ وہ ایک الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں۔ حالانکہ آپ تو مطلب میں تو تھک گیا ہوں کہ آپ کے منہ سے کسی کی تعریف سنوں۔ آپ بھی مجبور کر دیا نواز شریف نے آپ کو کہ آپ یہ کہیں کہ نواز شریف باقاعدہ ایک الیکشن۔ اچھا، اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری خوش نصیبی ہے جی، آج مجھے عدنان صاحب نے نواز شریف صاحب کے مخالفین کی صف میں کھڑا نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے اب ٹرول آپ بھی دیکھ لیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مانسہرہ کے دن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن موڈ میں کب آتے ہیں، تو وہ مانسہرہ سے آ چکے ہیں۔ جیسے وہ کھیلتے ہیں علاقے سے، علاقے کے لوگوں سے، اور خاص طور پر جو وہ جیسے انہیں انگیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک خاص وہ جو چارجڈ کراؤڈ جس کو آپ بولتے ہیں۔ یار میں کل بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کراؤڈ میٹر نہیں کرتا چاہے 10 بندے ہوں۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے قد کا رہنما جب جاتا ہے اس طرح کی ریلی سے ایڈریس کرتے ہیں تو وہ لائیو ٹی وی پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اسکرین پہ جو ان کا موڈ نظر آتا ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی کیا کانفیڈنس ہے اعتماد کا اور وغیرہ اور وغیرہ۔ لیکن بابو میرا اور تمہارا جو بنیادی دھندا ہے نا، بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو سارے صحافی ہیں نا، ہمیں یہ ہو گیا ہے کہ مجھے میری جو پسند کا لیڈر ہے نا، کیا اس نے میرے شو کی تعریف کی ہے یا نہیں، وہ مجھے دیکھتا ہے یا نہیں، یا میری جو کلپ وائرل ہوئی ہے کیا اس کو وہ آگے کر رہا ہے یا نہیں۔ ہماری زندگی اب یہ رہ گئی، صحافی اس بات کے محتاج ہو چکے اسی باقاعدہ یعنی قصیدہ گو بن چکے ہیں نا، درباروں میں قصیدہ گو ہوتے ہیں۔ صحافی کا یہ کام نہیں ہے، قصیدہ ہو، کوئی ناراض ہو، برا بھلا کہنا ہے بھئی برا بھلا کہہ لو، اچھا سمجھنا اچھا سمجھ لو، میں نے کون سا بھائی درخواست دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک صحافی کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے نواز شریف جیسے جو ایکسپیرینس بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہوتے ہیں نا بابو، ان کی ایک ایک موو کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ تم یقین مانو یہ دنیا کے کامیاب ترین اداکاروں سے زیادہ اپنے باڈی لینگویج کے ماہر ہوتے ہیں۔ سیاستدان؟ یس سر، سیاستدان یا پاکستانی سیاستدان؟ کہیں کا بھی سیاستدان، اچھا، ہر طرح کا جو بھی کامیاب ترین اور کائیاں ترین سیاستدان آپ نے ہے۔ کیا اڈاپٹ کیا نواز شریف کے 3 بڑے جلسے دیکھے 3 مختلف شہروں میں؟ اعتماد آ رہا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہی از فلی کانفیڈنس دیٹ ہی از ہیڈنگ ٹو ون الیکشنز، اوکے ٹھیک ہے، اب وہ ہوتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے یار یہ حکمت عملی مثلاً کہ وہ اتنے عرصے بعد گھر سے نکلے ہیں تو کہاں گئے، بیماری کے باوجود وہاں مختصر سی تقریر کی اس دن حافظ آباد۔ حافظ آباد گئے تھے۔ حافظ آباد کے بعد پھر وہ پنجاب میں کون سا حلقہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں وہ مانسہرہ چلے جاتے ہیں نا سر، کے پی کے میں پنجاب لفظ کہہ رہا ہوں یار۔ ہاں وہ آج کا جلسہ کے پی کے، سوری ننکانہ صاحب، کیا ہو گیا یار؟ ہاں ننکانہ صاحب، ننکانہ صاحب کرتے ہیں۔ کل وہ لاہور میں اپنے حلقے میں گھومتے رہے، جس کی تصویریں مجھے یہ جو ان کے بیوقوف کارخانے والے ہیں بھیجتے رہے، اور یہی نہیں انہیں پتا کہ بھئی NA-130 جو ہے اس میں گوال منڈی نہیں آتا، اس میں موہنی روڈ ہے، اور یہ موہنی روڈ کی تصویر ہے یا بلال پاک کی ہے، ساڑھے کو پوچھ لیں دے یار تنداز کریم پارک بھی ہے سر، کریم پارک او یار بہرحال۔ اب اس میں میں نے جب غور کیا تو دیکھو ہمیں یار اصل میں یعنی چھوڑو پکڑ پن کو، اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب بینگ این ایکسپیرینس پولیٹیشین جان بوجھ کر ان حلقوں میں جا رہے ہیں اپنی پریزنس سے جہاں پر
बकौल उनके 2018 में उनसे सीटें छीनी गई थी, या हमारी नजर में वो इलेक्शन हार गए। ये आपका अंदाजा है? नहीं, हाफिजाबाद मिसाल के तौर पर, वहाँ क्या हार है? हाफिजाबाद में ये 2018 में आपको पता है सायरा अफजल तारड़ साहिबा हार गई थी। हाँ, उनके मुकाबले में शौकत भट्टी थे। अब वहां पे मुकाबला बहुत तकड़ा हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब शौकत भट्टी साहब ने की बहन खड़ी है, अनीका भट्टी साहिबा, जो यहाँ के एक बहुत एस्टैब्लिश पॉलिटिकल प्लेयर हाफिजाबाद के मेहदी हसन भट्टी साहब की गालिबन दुख्तर। ठीक हो गई? ठीक है। उनके मुकाबले में सायरा तारड़। अब जोड़ बड़ा सख्त हो गया ना। अब नवाज शरीफ उन जगहों पे जा रहे हैं जहां इलेक्शन हारे, आप ये कह रहे हैं? मैं तो स्ट्रेटजी ये है कि उनको अपने उम्मीदवार को तकड़ा करने के लिए उन हलकों में जाओ। सो दिस इज गुड स्ट्रेटजी। मैं फिर वही बात, तुम्हें गुड बैड हमें वो एनालिसिस करना है कि ये क्यों ये। उसके बाद आ जाओ ननकाना उन्होंने 2018 में हारा था एजाज शाह साहब से, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जी। हालांकि एजाज शाह साहब जो है आपके महबूब रहनुमा के छोटे भाई के बहुत अजीज दोस्त हुआ करते थे। जब ये लाहौर के को महकमा होता है, उसका कोई डेट शेड का इंचार्ज होता है या क्या होता है, कोई डेट होता है ये हुआ। तो दोनों बड़े एक दूसरे के साथ इनकी बड़ी कमांडर थे तब। अब इनकी बहुत दोस्ती थी एक दूसरे से। तो और एजाज शाह साहब के जरिए ही शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम मिलता है कोई सत्य खैरा को मसला नहीं था, जो बाद में 12 अक्टूबर के बाद न रहा, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन 12 अक्टूबर को भी राब्ते में थे यार, बहुत जो राब्ते में थे भाई, बहुत। तो आप डिस्क्रेडिट न करें दोस्ती को भाई, इनकी बहुत थी। तो उन्होंने दोस्ती की लाज रखी। और यार शहबाज शरीफ और एजाज शाह साहब बहुत करीबी दोस्त है। बस यार जान छोड़ो, आगे जाना। बड़ी मेहरबानी सर। तो 2018 में ये हुआ कि इनके मुकाबले में थी शजरा मनसब अली, और ये नून लीग से थी। ये नून लीग कितने वोटों से हारी कोई है? अब शाह साहब ने लिए थे 63,818 वोट, और बीबी शजरा ने लिए थे 61,413। उनको लगभग पता है 1,000-1,200 का वोटों का ओवरऑल फर्क पड़ता है। उनको आधे कर लेते हैं तो पीछे हो जाते हैं। इसी सीट पर जो है जनाब हुए फिर 25 सितंबर 2022 को जिमनी इंतखाब। आपको याद है जो कौमी असेंबली की सीटें छोड़ी जाती थी, किस बार हो रही थी। तो यहां पर आपको पता है कि बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि वो इतनी सारी सीटों पे अकेले उम्मीदवार होंगे। तो वो हुए ना फिर। सुनो ना, 25 सितंबर 2022 को जब ननकाना में इलेक्शन होता है तो शाह साहब नहीं खड़े हुए, बानी तहरीक खड़े हुए, शजरा बीबी दोबारा हुई। अब अगर इनके आप वोट देखें 2018 में तो वो थे 61,000, लेकिन बानी के मुकाबले में खड़ी थी तो उनके वोट हो गए 78,000। अच्छा, तो वोट बढ़ गए, लेकिन उसके बाद 17,000 वोट वो हार गई। क्यों? क्योंकि बानी को वोट मिले 90,000। एक अच्छा वोट बैंक है नून लीग का। यहाँ वापस जो है एजाज शाह साहब आप खड़े हैं, मोर उनका इंतखाबी निशान है। अब वो आजाद पंछी हैं टेक्निकली, यानी तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार नहीं हैं। अब हजरे वहां से खड़ी हैं, वो 78,000 वोट पहले स्टैब्लिश कर चुकी हैं अपने। अब मियां साहब जब वहां गए हैं, और याद रहे कि ननकाना साहब यहाँ पे सिख यात्री भी आते हैं, समझ गए बात। आगे को बात चलनी है, जनूबी एशिया में कोई जियो इकोनॉमिक्स करनी है, सुना है ऐसा भी कुछ होना ऐसा भी। हाँ, ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। तो बड़ी उम्मीदें हैं हर तरफ से इनका। इस वक्त ननकाना जाना, तो ये अब देखना ये है कि इसके बाद इनका अगला पड़ाव कहाँ। तो आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकली नवाज शरीफ इज सो इंटेलिजेंट? यार मैं बस यही मैं कहता रहूं कि मियां साहब जी मैं तस्वीर पर्दा ना कराएं यार, मैं एक एनालिसिस करने की और आपका तज्जिया ये चीख के कह रहा है कि जिस कदर कैलकुलेटेड मूव है। मियां साहब खुदा का वास्ता है, अगर आपका कोई चहीता कोई चमचा सुन रहा है तो खुदा के लिए रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि कल जब आप हुकूमत में आए मैं आपको सलाम करने आऊं तो मुझे पहचान लीजिएगा। नाम ये कह ओ भाई मेरे, मैं तजिया कर रहा हूँ खुदा दा वास्ते। जान दे मैं मुझे आगे बढ़ने तो, खुदा के लिए मुझे आगे बढ़ने तो। लेट्स फोकस ऑन। अब मुझे गुमा है कि ये शायद इसके बाद जाएंगे बिहाड़ी। अच्छा, क्योंकि बिहाड़ी में इन्होंने 2018 में यहाँ की 4 सीटें 2 हारी थी 2 जीती थी। अब वहां के एक बड़े, यहाँ पे जैसे हाफिजाबाद में शौकत भट्टी साहब बहुत तकड़े प्लेयर है ना, वहां पे बहुत तकड़े प्लेयर हैं। एक नजीर जट साहब, उनकी बेटी शायद, उनकी बेटी आयशा वहां खड़ी, और इसरा, और वो आजाद उम्मीदवार है।
नहीं, जाहिर है कि वो यानी PTI की। हाँ मतलब ओहो, और लेकिन वो ये बाहर ही जाएंगे। नजीर अराई उनके मुकाबले में जो कि ओ एक भाई, मैं अर्ज ये वो तकड़े उम्मीदवार हैं, है ना। तो जब नवाज शरीफ जाएंगे, एक जलसा करेंगे तो उनकी ताकत को और ताकत मिल जाएगी। तो इस्लामी जमहूरिया राजस्थान वर्सेस इस्लामी जमहूरिया जटस्तान में अराइयों का पोल जरा बढ़ जाएगा। तो यार छोड़ो ना। खैर, अब इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो असल शो जो वॉचेबल होगा वो ये कि मियां साहब पिंडी कब आते हैं। नहीं, मियां साहब की जलसे रुक नहीं रहे। पिंडी आना उनका जरूरी है। क्यों? कि उनसे 2013 में ये शेख रशीद ने छीन लिया था और उनका उन्हें बहुत कलक। 2018 में भी छीन लिया। अरे 2013 में हारना वो नहीं भूले। और इसमें बाद में उनको क्या हुआ कि उनको हनीफ अब्बासी साहब को अडॉप्ट करना पड़ा जो ओरिजिनली जमात इस्लामी से थे 2013 में। तो वो उनके दिल को लगी हुई है। और 2000 अब ये पिंडी, अब मैं तुम्हें एक बात रिवील करूं, ये तारीखी 27 को शायद नवाज शरीफ, जैसे आप मेरे साथ बैठते हो ना, एक जमाने में एक शो करता था तो मेरे साथ मुश्ताक मिनहाज बैठा करते थे आज टीवी पे। तो मुश्ताक साहब को मियां साहब ने कहा था कि आप 2013 में कौमी असम्बली में इलेक्शन में शेख रशीद के मुकाबले में PMLN की टिकट पर खड़े हो जाएं। अच्छा। और मैं इतना बुरा आदमी हूं कि जब मुश्ताक बेचारे ने मुझे छोटे भाइयों की तरह मुझसे इजाजत मांगी तो मैंने कहा इसके बाद मेरे साथ कभी शो पे ना बैठना। उस बेचारे ने वो कुर्बानी दे दी, लेकिन बिलाखिर फिर आजाद कश्मीर जाना ही पड़ा ना, क्योंकि इस सहाफत में कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हें भी मौका मिले तो बराए मेहरबानी मुझसे मशवरा न करना, मैं तुम्हें मतलब जिस तरह की सहाफत हो चुकी है। उसके बाद मेरा ख्याल है जब वो पिंडी आएंगे तो मरी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि शाहिद साहब नहीं है। आपने बड़ा लंबा शेड्यूल दे दिया। नहीं, मैं कह रहे हैं बिहाड़ी, पिंडी, बाबू, और मरी भी कह दिया आपने। इस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ ना कि जो पैटर्न बनना हो सकता है गलत हो, मैं तो उनका यानी शेड्यूल मुरतब नहीं करता। तो उन्होंने वो पंजाब में कई सीटें थोड़े थोड़े मार्जिन से हारी थी 18 में। यार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है, मेरे पास शेड्यूल तो नहीं है ना यार, ना मैं बनाने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें अंदाजा बता रहा हूँ। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है, बहरहाल ख्वाजा आसिफ बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में इनके दोस्त थे, शहबाज साहब के नहीं। अच्छा, तो ये वहां पे मुकाबला बड़ा हुआ हुआ सख्त किस्म का रेहाना डार साहिबा से। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब माही वे मोहब्बता सचिया कह रहे हैं कि रेहाना डार का इतना कद बढ़ चुका है कि ख्वाजा आसिफ को अब नवाज शरीफ की जरूरत पड़ रही है। देखो सोशल मीडिया पे जो उधर नहीं ख्वाजा साहब, देखो मैं तो वहां गया नहीं हूँ उस हल्के में, ना तुम गए हो, तो जो चीज देखी ना हम कह सकते हैं। लेकिन तुम 100% भी जीत रहे हो तो यार मेरे यार के खिलाफ इस वक्त एक बड़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी है, तो उसके साथ खड़े होकर थापड़ा देना है। तो मुझे लग रहा है, मुझे महसूस कर रहा हूं मैं कि पुरानी दोस्ती है। साउथ पंजाब आपने निकाल दिया। वो यार मुझे जिन चीजों का फौरी अंदाजा जहन में आया, चूंकि मैं यही थे, तुम जो देखो तुम्हारे सामने बैठ के मैं टुकटा ये हिसाब किताब जोशियों की तरह जायचे बना रहा था, तो ये जायचे बनाते बनाते एनालिसिस किया है, जो हो सकता है सारे का सारा गलत हो, लेकिन मेरा जायचा ये नहीं कर रहा है। अब ठीक है, ये तो हो गई वहां की खबर नवाज शरीफ साहब की। अब दूसरी तरफ जो है वो बानी जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो को मत्था लगाने के चक्कर में पड़ा। किसके साथ? तख्त या तख्ता। देखो हालत तो उनकी तख्ती वाली हुई है। तख्त और तख्त तो आपकी खुशफहमी होगी, मैं नहीं मानता कि वो अंदर से वो अभी तक तकड़े हैं। आई एम सॉरी, मैं आप पसंद करें ना करें, वो पल्ले कख नहीं रहा, तुसी कहते हो नहीं रहा। बहरहाल उन्होंने कल जो हम शो कर रहे थे तो हमने जिक्र किया कि उन्होंने जो बात की अपने, लेकिन वो बाकायदा आज भी उन्होंने दोहराया है, वो चाह रहे हैं कि इस इतवार को 28 तारीख उनके उम्मीदवार जो हैं वो आ जाएं अपने हलकों पे और छा जाएं। ठीक है, तो सियासी और बताएं, सियासी मोबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे। और बिलावल जलसे करे, नवाज शरीफ करे, तो उनको भी करने चाहिए। भैया वो जिस अंदाज का आना चाह रहे हैं, वो छा जाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये जो पंजाब में दफा 144 वगैरह वगैरह, ये भी मुझसे घबरा के लगाई जा रही है। और वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते रहे हैं कि जब मेरे बंदे 28 तारीख को निकलेंगे तो लग पता जाएगा, क्योंकि वो साथ थ्रेट कर रहे हैं कि मेरा जो उम्मीदवार बंदे ना लाया मैं बदल दूंगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कागजात नामजदगी जिनके मंजूर हो चुके हैं,
उनमें उनके पास एक फहरिस्त मौजूद है कि वो लास्ट मिनट ही नहीं, वो तो है, वो तो पंजोता साहब उनको दे आए हैं लिस्ट, गौहर साहब सॉरी। लेकिन इसमें मुझे याद आया ये भी है अच्छी ठीक है ना सर, 1970 में जब ये फैसला होना था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले या न ले, तो उससे पहले एक बहुत बड़ी बहस, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि हमने तो इनकलाब लाना है माओज़ेतुंग वाला, तो इनकलाब तो इंतखाब के जरिए नहीं आता ना। तो पीपल्स पार्टी के जो जलसे होते थे ना, तो उसमें जो नौजवान थे ना उस जमाने का यूथ बल्ज 16 से 30 साल के दरमियान, 1970 वाला नहीं 1969 में वो जलसों में घुस के नारे लगाना शुरू करता, इंतहाब या इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, इंतहाब या इनकलाब इनकलाब इनकलाब, ये नारा था उनका। हाँ, तो नहीं वो लड़कों का। भुट्टो साहब ने कहा अच्छा दोस्तों करता हूँ, तो फिर इन्होंने हाला कन्वेंशन करवाया था बहुत, ठीक है, वहां पर बड़ी सो कॉल्ड बहस मुबाहिसे के बाद फैसला हुआ नहीं इंतहाब ही लड़ ले तो इसी में हिस्सत है, इंतहाब। तो इनकलाब का रास्ता छोड़ा भुट्टो साहब ने और मुझे ये महसूस हो रहा है कि समहाउ और दी अदर बानी तहरीक इंसाफ आप पसंद करें या न करें, वो पुरएतमाद हैं कि अवाम का बेपनाह हुजूम जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब हमें हमारा कायद पुकारे और हम निकलें। नहीं, वो एतमाद में कैसे हो सकते हैं इस सब के बावजूद? मैं तो उनका ना मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना उनसे मिला हूँ, ना मैं उनका वकील हूँ, ना वो क्योंकि वो बार बार सुनामी कहते हैं, मुझे लगता है सुनामी आया तहरीक इंसाफ पे और आके गुजर गया। अब सुनामी के बाद क्या एतमाद होगा और क्या वो उनके अंदर? देखो ये डेडलाइन देना कि 28 मई को निकलो, वो सर सियासी मूव है ना, क्या वो ये कहते कि आज से निकलो। यार मुझे ये इत्तलात आ रही है कि मेरे उम्मीदवार जो हैं वो घबरा के उन्होंने जैसे देखो नहीं इंतखाबी माहौल बनाना है और इंतखाबी माहौल के लिए कलेक्टिव उन्होंने एक बात रख दी, तो इसमें लिए अगर आपने कोई बिग स्केल शो ना करना हो ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे डी चौक पहुंचो, अपने अपने झलकों में निकलना ना सर। यार तुम बात नहीं समझ रहे हो, आप एक डेडलाइन नहीं देते हो। मतलब आप ये कहें कि मेरे उम्मीदवारों तुम घबराओ नहीं, तुम निकलो, अपने हलकों में रैलियों से खताब करो, पकड़े जाते हो कोई बात नहीं, देखी जाएगी कितने दिन रह गए हैं, एक जरा यही उन्होंने कहा, बट एक डेट बना दी यार कि उस डेट का फिर मुझे बताया जाएगा। फिर अभी मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि सियासतदान जो भी होता है उसकी हर मूव को मेरे प्यारे भाई अदनान हैदर साहब उसके तज्जिए की जरूरत होती है। सवाल उठता है, ब्रेक लेने दे मुझे, क्योंकि आप इस बहस को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। मैं हर सूरत मैं इस पे डटा हुआ हूं कि मियां अपना बानी जो है वो 28 इतवार के दिन बिग मैसिव एक पब्लिक शो करना चाह रहे हैं। तो ठीक है ना, वो इंतखाबी रैली है उनकी, इंतखाबी उनका शो है। ब्रेक ले लेंगे, इसके बाद इस पे बात। वेलकम बैक नुसरत साहब। अच्छा भाई, सबसे पहली बात यह है जी कि मैं अपने बहुत सारे देखने वालों से, मुझे कम से कम अभी तक 40 से 50 जो है वो मैसेजेस आ चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप और मैं अभी ट्विटर वगैरह कि यूट्यूब पे हमारा शो की जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो नहीं हो वहाँ कोई नहीं, वॉइस का प्रॉब्लम, अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, तस्वीर आ रही है। तो प्लीज़ मेरी टेक्निकल वालों से मैं दरख्वास्त है कि इसको ज़रा चेक करने की कोशिश करें। अब मियाँ अर्ज ये है कि इससे पहले समझ नहीं आ पा रही, आप ये कह रहे हैं कि भाई वो उसका हक है कि अगर उम्मीदवार लड़ रहे हैं उसका फोटो और उसका नाम लगा के तो वो इंतखाबी रैली एक्टिविटी कर लें, खत्म होगी बात। सर जी आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो यहाँ तक बात नहीं सिर्फ क्या है, तो फिर समझाएं ना, बताएं वो ना। कर ये रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस इतवार को इतना मैसिव शो हो, ठीक है, जिससे किसी ना किसी तरह कुछ मकामात पर गवर्नमेंट पैनिक में आकर रिएक्ट को मजबूर हो, रिएक्ट करने। आप कह रहे हैं वो प्रवोक करेंगे, करना चाहते हैं या ख्वाहिश है उनकी? बहुत डरते डरते अल्फाज में मैं ये कि वो तवक्को ये बांधे हुए हैं। अगर 9 मई ना होता तो मैं आपकी बात मान लेता। 9 मई के बाद मामलात बदल चुके हैं, अब उनको सारी चीजें समझ आ चुकी हैं जो शायद 9 मई। अच्छा भाई, ये इत्तला मैं दे दूं, साउंड इज बैक लोग कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप 9 मई को कुछ और हो गया, दूध का जला छाछ भी ऊपर, अल्लाह भला करे आपका। अब मेरा उनसे मशवरा ये है
کہ وہ یہ نہ کریں. نہیں وہ کریں, آپ کا خدشہ غلط ہے. 9 مئی کا جہاں تحریک, جی بولیں آپ بولیں. نہیں آپ نہیں کریں. میں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں 9 مئی کا جہاں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا, وہاں سیاسی بصیرت بھی ملی ہے انہیں کہ ایک حد ہوتی ہے. مل گئی مجھے لگتا ہے کم مذاکرات ہوئے ہیں, ہو جائیں گے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن 9 مئی نے انہیں بہت کچھ سکھایا بھی ہے. تو جو آپ کو خدشہ ہے وہ نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, انتخابی ایکٹیویٹی. دیکھیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کی طرح, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرف کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا شو ہو, اس سے یہ حکومت گھبرا جائے, اور ہماری یہ نگران حکومت جو ہے نا یہ گھبرانے میں ذرا ماشاءاللہ. مثال کے طور پر یہ آج کے دور میں کتنی بڑی حماقت ہے کہ بھائی صاحب آپ اگر ایک ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ سے پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہو بھائی, کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, چھوڑو اب اس بحث میں نہیں پڑتے, اتوار آئے گا انشاءاللہ, میری زندگی کی دعا مانگو تو پیر کے دن ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک, ویری رائٹ. تم بچے سے بات کر لو, وہ آپ سے ایک بات کہے گا, انہوں نے کہا صاحب جو بھی بات ہے تحریک انصاف جو ہے نا کے پی تو اس کا ہے, یہ سنتے ہو یا نہیں؟ اب آپ گئے تھے نا, میں تو نہیں گیا تھا مردان, آپ ہی نے کل یہ دکھایا نا لوگوں کو کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے, لیکن اس حلقے سے امیر حیدر ہوتی جیتے گا. کہا یا نہیں کہا. اب وہ جو آپ گھر بیٹھے فیس بک وغیرہ کے ذریعے وہ تجزیہ کاری کر کے ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں ہے نا. اب مردان آخری خبریں آنے تک میرا خیال ہے کے پی کا ہی حصہ کی تھا. بات کر رہے ہیں, میں پاکستان کے اس طرح 26 شہر آپ پھر سنو نا, میجورٹی آف سٹیز میں یہی ایلیمنٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو سنو, ووٹ ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. یار تم بات مجھے سمجھانے میں دقت ہوتی ہے, اس میں پھر ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے, تو آپ کو ماشاءاللہ آپ کو ہر ایک کو, تو وہ ٹپکل آدمیوں تمہارے بارے میں انگریزی کا محاورہ بنا ہوا ہے, فرینڈز ٹو آل سنسیئر ٹو نن. جو شخص سب کا دوست ہو وہ کسی کا مخلص نہیں ہوتا. ٹائم کی کمی ہے مجھے اچھا میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اسی طرح جیسے آپ نوشہرہ گئے تھے, اب امیر حیدر ہوتی جو ہے وہ تمام در اس کے باوجود اپنے حلقے میں جو شخص مضبوط ہے تو لہٰذا الیکٹیبل اس کو وہ نہیں کر سکتے. سملرلی آپ گجر خان گئے ہیں, آپ کو لوگوں نے کیمرے میں کہا ہے کہ جی ذاتی طور پر ہم تو یہ, لیکن ووٹ بھلے پی ٹی آئی کو تو بندہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا نوشہرہ آپ کو وہ کیا اختیار ولی اس کو, مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آن گراؤنڈ سچویشن اور ہوتی ہے, اس کو پہلے جا کر دیکھے بغیر ہم ایک وہ اس میں آن گراؤنڈ سچویشن یہ چیخ کے کہہ رہی ہے, اگر ورچوئل جلسے کرنے دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, لیکن نگران حکومت نہیں بات آ رہی نا. ہاں نگران حکومت تو منہ کالا کرواتی ہے نا. ہم بریک پہ جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بانی تحریک جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ اتوار کو ان کے شو کو یہ نگران حکومت کسی نہ کسی طرح پنگا لینے کی کوشش کرے. مردان والا ایک طرح کمپریہنسو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردان میں آپ کو امیر حیدر ہوتی جو ہیں وہ ون سائیڈڈ نظر آ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی اس کو یا جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت سے یافتہ ہیں وہ ٹف ٹائم, عاطف خان صاحب کیونکہ وزیر بھی رہے ہیں. عاطف خان زیادہ وقت اپنے F63 میں جو گزارتے تھے, یہاں جو وہ ریستوراں بنے ہوئے ہیں جہاں رونق کے ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ووٹ تو ہے یا نہیں کوسار مارکیٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یار وہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حلقے میں موجودگی میری جان بہت میٹر کرتی ہے. اور پھر آپ کو کاکا خیل جو مردان کا رہنے والا ہے, جس نے ساری زندگی صحافت کی نظر کی ہے, کیا اس نے تمہیں کیمرے پہ سمجھایا نہیں تھا کہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہوتی ہے سر, اور عدنان بھائی ان کے پاس مینیجرز نہیں, یہ سمجھایا تھا یا نہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. تو اب یہ کہ آپ اجازت, اگر آپ نے بریک پہ جانا ہے تو بریک پر جانے سے پہلے لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کراچی جاتے ہوئے احتیاطاً عدنان حیدر صاحب جو ہیں تھوڑی دیر کو نوشہر و فیروز بھی رکے تھے, تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نے اس کے سارے بازار پھر لیے تھے. وہ ایک ضلع ہے, بریک کے بعد وہاں کے لوگ اس بات. بورڈ ہے اس میں دولت پور ہے 47 کلومیٹر, مورو ہے 27 کلومیٹر. آئی وش کہ میں یہاں آپ کو لے کے جا سکتا, میں ان کو کراس ضرور کروں گا لیکن شام پڑ رہی ہے. تو مجھے اس بورڈ کے پاس ایک اور بورڈ نظر آیا, وہ ہے, یہ میری گاڑی ہے ویسے, وہ ہے
नौशेरो फेरोज सिटी, तो नौशेरो फेरोज सिटी जो है मैं वहाँ लेके आपको जाऊंगा और हम देखेंगे कि वहाँ कौन से उम्मीदवार हैं जो एमएनए और एमपी के कैंडिडेट्स हैं, किस पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी है। पाकिस्तान का सबसे मसरूफ रोड है और पाकिस्तान की ये लाइफ लाइन है, ये जो रोड है कराची का। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ना ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे काम करती है, और जो टोल प्लाजाज की भरमार है उस पर भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप किसको वोट देंगे? हम तो अभी सोच रहे हैं, जैसे हालात देख रहे हैं अभी, तो मेरे ख्याल है किसी को वोट नहीं देंगे। तो हालात इतने खराब हैं कि किसी को नहीं देंगे। क्योंकि देखे ना, किसी ने भी आवाम के लिए नहीं सोचा अभी तक ना। पहले तो मैं सपोर्ट करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, ठीक है, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। हम किसी को भी नहीं, तो किसी को तो दो ना, वोट अमानत होता है ना, वोट अमानत है ना, पर दोगे सही। वोट का सही इस्तेमाल करना हम पर फर्ज है। अगर हमारे को बंदा अच्छा नहीं मिले तो हम फर्ज को क्यों जाया कर दें। यहाँ कौन कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी से लड़ रहे हैं? यहाँ पर तकरीबन जितनी भी पार्टियां सबने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एमकेएम ने खड़ा किया है, नून लीग ने खड़ा किया है, पीटीआई ने खड़ा किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़ा किया है, और जितने भी मुकाबला किसके दरमियान है? मुकाबला यहाँ पर जुल्फकार बहन साहब का होगा NA 206 पर, जो और वो जुल्फकार साहब पीपल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी से हैं। और जो गुलाम रजा जतोई साहब का वो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। उनका अगर नून लीग से इत्तेहाद हो जाता है तब मुकाबला टफ है। जतोई साहब अब पीपल्स पार्टी छोड़ गए हैं? नहीं, नेशनल पीपल्स पार्टी। अच्छा, नेशनल पीपल्स पार्टी में थे तो अब वो चले गए। हाँ, उनका GDA के साथ इत्तेहाद है। अगर उनका नून लीग से इत्तेहाद हो जाता है तो मुकाबला तब सख्त हो सकता है। सर वोट हम किसको नहीं देंगे, क्यों? बस किसी ने काम किया ही नहीं है तो पिछले दफा वोट दिया था? दिया था तो जिनको वोट दिया उनसे पूछा भाई काम क्यों नहीं कराया? देखे ही नहीं है तो कहाँ, देखे ही नहीं आपने? देखे ही नहीं है। आसिफ जरदारी जिंदाबाद। आसिफ जरदारी साहब जिंदाबाद। तो जरदारी साहब को ये भी दिखाए ना, हालात ठीक करें। इंशाल्लाह देखेगा, अभी देखेगा, कब? अभी काम आएगा तो काम चलेगा। पीटीआई को? हाँ, कहाँ के रहने वाले? इधर नौशेरो के रहने वाले। तो पीटीआई को क्यों देना चाहते हैं वोट? बस किसको देंगे वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? नवाज शरीफ उसने कोई तो काम अच्छा किया होगा नहीं। हम गरीब लोग क्या करें, किसके पास जाएं? महंगाई भी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कितना कमा लेते हैं? 500-600 कमा लेते, होता है गुजारा? नहीं गुजारा नहीं होता। वो कहते हैं गरीब का गुजारा हो रहा है, गरीब सुखी है। क्या करें, 500-600 में गुजारा होगा? आप बताओ। वो कहते हैं हो जाता है। नहीं होता है। ये वजीर मुशीर सारे कहते हैं हो जाता है। अरे कहते तो हो जाते, तो हम तो कहते नहीं होते। हम वोट देंगे जी सिंध को देंगे, जी सिंध को देना है जी वो। सिंध को देंगे कौन है उम्मीदवार? जी। कौन है उम्मीदवार? हम देंगे वोट बशीर खान कुरैशी को देंगे। जीत सकते हैं और वो? किसको? इंशाअल्लाह। वोट किसको दिया था? मैंने किसी को नहीं दिया है, क्यों यार? बस किसी को नहीं दूंगा। इस दफा किसको दोगे? अभी मुंड नहीं है, हमारे घर गिर गए, हर चीज गई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। नहीं, वो घर बना के दिए हैं ना आपको। नहीं दिए ना, किसने दिए? वो कहते हैं हमने घर बना के दिए, इमदाद दी नहीं है। दिए, किसी ने भी नहीं दिया है। हमारा खुद अपना घर गिर गया, कोई बना नहीं आया, कोई इमदाद मिली आपको? कुछ भी नहीं, कुछ पैसे मिले होंगे? 10 रुपए भी नहीं। हम खुद कमाते खुद खाते हैं। नाजरीन, नौशेरो फेरोज का विजिट करना है तो रिक्शे पे विजिट करते हैं, आइए मेरे साथ चले। हिंद के अंदर जो मजदूर या जो रोजी वाला कमा रहा है वो 500 से 600 रुपए है एवरेज। तो मुझे नहीं मिला कोई 2000 वाला, तो 500-600 रुपए में उसमें गुजारा करना है। गुजारा हो जाता है इसमें? हाँ शुक्र। और वोट किसको दिया था? वोट PPA के। और इस दफा किसको देंगे? ॾिसो पोइ मुक़दर अचे जो नसीबा। हम तो पीपल्स पार्टी के हैं। सर, पीपल्स पार्टी वालों कहें काम तो कराएं, लोगों का बुरा। इंशाल्लाह हो जाएगा। फिलहाल वजीर आज़म बन जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बिलावल साहब, आप वजीर आजम बने, इनकी उम्मीद है कि आप वजीर आजम बनेंगे तो नौशेरो फेरोज के मसले हल होंगे। अपने जमीर को देंगे भाई, जमीर इलेक्शन लड़ रहा है इंशाल्लाह, सीधी बात है। मेन चीज है ये कि वोट देते हैं, ठीक है, उसके बावजूद अमल नहीं करते, ऊट पर मजा जाते हैं। क्यों नहीं करते, भाग क्यों जाते हैं? पता नहीं ये क्या है, ये इनकी समझ में बात नहीं आ रही कि भाई आगे भी साफ देना है आपको। किसको देंगे भाई वोट? वोट हम पीपल्स पार्टी को देंगे, हम जाले हैं पीपल्स पार्टी के। काम किया भी उस पार्टी ने शहर में क्या काम किया? बहुत किया है, सारे सब कुछ किया है, रोड बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हम तो किसी को भी नहीं देंगे वोट अभी, यार यूं तो ना करो, वोट तो दो ना भाई। किसी को दे, कोई काम ही नहीं आता है हमारे। नहीं, वो सियासतदान कहते हैं हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे हम सारे मसले हल कर देंगे। नहीं, पहले भी बोल रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ आ जाए? जी। नवाज शरीफ क्यों आ जाए? अच्छा बंदा है वो, पीपल्स पार्टी हो जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ आएगा महंगाई कम हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी क्या काम किए हैं पीपल्स पार्टी ने? अल्लाह का शुक्र है, हर काम किया है। हम वोट देते हैं, किस लिए देते? उनका हक है,
हमें उनके गिरफ्तार हाथ पकड़ के उनसे काम लेना चाहिए। ये हमारी मजलूम आवाम है, ये काम नहीं लेती है, मजलूम नहीं बनना। ये काम नहीं लेती है। हमें अपना हक लेना आता है, आपका वोट होता है तो आपको अपना हक अगर लेना वोट आना देना चाहिए। आता है तो हक लेना भी आता है। अरे वाह, मैंने देखा है यहाँ नौशहरों में और मोरों में बहुत झंडे हैं, बैनर्स हैं पीपल्स पार्टी के। पीटीआई के झंडे और बैनर्स नहीं है तो आप इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर रहे? जो ना हम जो है ना, हम है नजरियाती लोग, ठीक है, पैसा हमारे पास नहीं है, हम मिडिल लोग हैं। क्या है? मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम नजरिए के साथ खड़े हैं। जितना भी होता है, हमारी जितनी कुव्वत होती है, हम अपने जेब से करते हैं। क्या वोटर्स को राब्ते में क्यों नहीं है, उनको क्यों इकट्ठा नहीं कर रहे आप? नहीं, वैसे तो हम जाते हैं और हमारे साथ भी हैं, हमारी मीटिंगें भी होती हैं। जितने नौजवान हैं जो यंग हैं वो सारे हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आप देखना, आज अभी जो इलेक्शन होगी इसमें रिजल्ट आएगी आपको। ये बताएं, पीटीआई ने 2018 में कराची में बड़ी जमात बनी थी, वो फिर 3.5 साल हुकूमत भी की। अंदरून सिंध में क्या काम किया पीटीआई ने, और बड़ा सही बताइएगा। देखो ना, इधर अंदरून सिंध में जो है ना, ये पीपल्स पार्टी वालों का होल्ड था। क्या? लेकिन जो काम कर सकती थी पीटीआई वो नहीं किया। ग्राउंड वर्क जो अंदरून सिंध में हो सकता था वो तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, अंदरून सिंध में उन्होंने किया है। अभी हमने जो हमारा एक अमान कादी साहब जो है ना, फोकल पर्सन था उसमें, अमान साहब जो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इधर ट्रांसफर बिजली दिया, उनको तारें दी, उसको ट्रांसफार्मर दिए, सब कुछ दिया। जो उसके पास बजट आई वो इधर लगाया उसने। ये रमजान साहब आजाद उम्मीदवार हैं आप, क्योंकि हमने तब जी किया था तब। जी बहरहाल मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप पूरा न मानिएगा, तुम बड़ी मेहनत करते हो, मैं हमेशा तुम्हारी जो अच्छी बात है यहाँ पे भी तुम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्का था बाबू, तुम्हें यहाँ बहुत होमवर्क करके जाना चाहिए था। नहीं था भाई तो मुझे फोन करके पूछते। आप फोन उठाते नहीं हमारा। भाई साहब, ये हल्का इतना इम्पोर्टेंट है। ये नौशर फिरोज, यस सर, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब यहाँ से मेंबर नेशनल असेंबली इलेक्ट होते रहे इस हल्के में जहाँ आप लोगों से घूम फिर रहे थे। आ गई समझ? जो वजीर आला सिंध रहे ये। अब 2018 में इनके फर्जंद हैं गुलाम मुर्तजा जतोई। आपको पता है कि जो पहली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उनमें वो उनके अलाई रहे और वजीर कम्युनिकेशन होते थे। मुर्तजा जतोई जो सियासी वारिस है मुझे, उन्होंने वोट लिए थे 84,361। उनके मुकाबले पे है जुल्फकार अली बहन 90,000। 6,000 3,000 वोटों का फर्क सब हो रहा है। जुल्फकार बहन जो है, अदरवाइज ये पीर पगाड़ा के ये लोग खानदानी दीवाने मुरीद हैं। कैसी बात है? बंदा पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होता है, अभी भी हैं, अभी भी, इवन टुडे। तो फिर कंटेस्ट कैसे कर भाई वो कहते हैं कि वोट पीपल्स पार्टी का, सिर पीर पगाड़ा का। ये वो वाली कौम है। माय गॉड, समझ रहे हो ना बात को? कि सर जो है वो पीर का, रिस्पेक्ट पूरी करेंगे और लेकिन ये कि जी वोट। अब इस दफा मुर्तजा जतोई जो हैं वो रिलक्टेंट थे, वो कहते थे कि नहीं छोड़े। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं कि आसिफ जरदारी साहब गुज़श्ता 15 साल से सारी तवज्जो नवाब शाह पे, जिसको आप न्यू वजीर यानी बेनजीराबाद उधर दे रहे हैं। तो मोरू और नौशहर फिरोज को निगलेक्ट कर रहे हैं। मोरू जो है ये जतोई साहब का भाई इलाका है। यहाँ पर मेरी आंखों से 1983 में जो है हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जा रही थी एमआरटी तहरीक के दौरान। यहाँ पे इतनी सख्त पीपल्स पार्टी की रूट्स है। आ गई समझ तुम्हें? वाकई गोलियां बरसती आपने देखी? यस सर, उस वक्त चूंकि गिरफ्तार हो गए थे तो ये मुर्तजा साहब की वालिदा और जतोई साहब की वालिदा आ गए थे बाहर मुकाबले के लिए, एमआरडी मूवमेंट। खैर एनीवे, तो वो मैं चाहता कि तुम जाते, मुझसे पूछ लेते और फिर तुम। लेकिन हालत बहुत बुरी सर, मैं चाहता हूँ यार तुम्हें बस ये है कि एक तुम्हें यही नजर आता है भाई ये इस्लामाबाद नहीं है, ये अहमद नौशहर। कम से कम बिलावल साहब को देखो इसमें जो बहुत बड़ी गलती है कि सखर कराची जो है मोटरवे बन जाए तो ये जो तुम्हारी तमाम शिकायत दूर हो सकती है। क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बार से निकल जाऊंगा, बार और सर अंदर की भी तो हालत ठीक करें ना। अब ये भीम साहब जो आपके दोस्त हैं, 2 दफा। और नहीं, मैं तो इनके, बल्कि मेरी तो मुर्तजा के साथ ज्यादा दोस्ती है। वैसे ठीक है मेरे, यानी भीम साहब के साथ वैसे मेरे बहुत अच्छे। मुकाबला सख्त हो सकता है क्योंकि बड़े 6,000 वोटों से हार रहे हैं। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मुर्तजा जतोई जो है गुलाम आज से
1.5-2 यार ये अच्छा मैं इनको कंफ्यूज कर गया पीपल्स पार्टी में वो अब वो तुम्हें तो यानी 1986 में यार जब अलग हुए थे ना तो जतोई साहब ने नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और तुम्हें वो बेचारा बता रहा था एनपीपी छोड़कर तुम कह रहे हो पीपल्स पार्टी छोड़कर मुर्तजा जतोई तुम्हें ये नहीं पता मुर्तजा जतोई कौन है। अच्छा बहरहाल अब ये कि यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला होगा और मैं यार मुझे कुछ पैसे दिलवा दोगे लिफाफे नवाज शरीफ से? अगर यहाँ पे एक जलसा मियाँ साहब या मरियम बीबी कर ले तो मुर्तजा जतोई जीत जाएगा। अगर नवाज शरीफ जलसा कर ले नौशेर फिरोज में वो चैलेंज करता फिर बिलावल के हमारे सिंध में आके जलसे करें। और मैं कह रहा हूं अगर वो कर लें तो ये वाली सीट जीत सकते हैं। और गुलाम और वैसे बिलावल साहब इस वक्त जो है ना वो नूरपुर नूर में क्यों जीतेंगे? वैसे मुझे समझ नहीं बात ये क्यों जीत सकेंगे? जैसे मैं ये मंतक समझ यहाँ पे बहुत सारे आबादकार हैं। अब बस मैंने खत्म कर दी बात। आबादकार है आखिरी लाइन कह लूं इस वक्त वैसे बिलावल साहब नूरपुर नून में है। गालिबन नून फैमिली जो है जी वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रही है। ऐसे ही एहतियातन कहने से पहले अपना नाज़रीन बहुत ख्याल रखिएगा। अब नवाज शरीफ साहब तक ये बात पहुंचाएं कि एक सीट तो लाभ जानी चाहिए सिंध वाले पासों भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने वोट का भी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अल्लाह हाफिज नाज़रीन।